Welcome all. Let's start today's topic, outbreeding devices. Last time we saw the differences between self-pollination as well as cross-pollination. Self-pollination includes autogamy and geitonogamy, whereas cross-pollination is xenogamy. We have also observed how cross-pollination is important than self-pollination because cross pollination gives us variations, it gives us adaptations, as well as it is the main cause of evolution, so that these angiospermic plants can survive and withstand to the different environmental settings. So that's why we need or we encourage a cross pollination and self pollination is discouraged. Plants also have adapted these phenomenons to encourage cross pollination, and for this they have developed these outbreeding devices in their flowers so that they will do more cross pollination and less self pollination. So we have to observe all these devices in plants and also learn how these devices are helpful for cross pollination. So let's start our topic in sexual reproduction in angiospermic plants, that is flowering plants with outbreeding devices. In outbreeding devices, flowering plants have developed many such conditions to discourage the self pollination and to encourage the cross pollination. If you observe one by one, so it includes hercogamy, it includes dichogamy, heteromorphy, heterostyly, unisexuality, self incompatibility, okay, and many more. So all these terminologies are bit confusing, but we will observe and learn all these terminologies with good examples, and we will try to make sure that every part should be properly understood. So if you saw here hercogamy or HERCO or HERKO, so there is a difference in the spelling. Here there will be KO and in the next there will be CO, and both represents the same meaning. So this is nothing but the strategy employed by bisexual angiosperms to reduce sexual interference between male and female. So this indicates that if a plant is bisexual, it means it has both kinds of flowers, male as well as female flowers, or they may have a bisexual flower containing both androecium and gynoecium. So hercogamy is a condition where fusion of androecium and gynoecium will be avoided, means self pollination in the same flower will be avoided and cross pollination will be encouraged. So how it is avoided? So how this hercogamy works? Hercogamy works with different ways, with approach hercogamy or reverse hercogamy. Approach is also called as pin and reverse is called as the thumb. Okay, there is one more condition. If both of them are present in one plant, then the condition is distylous plant, and if one more will be there, three present, then it will be called as tristylous plant. So let's look all these gamy in different formats with different examples. So we will start this whole outbreeding devices with the first point called dichogamy. यहाँ dichogamy represents the different synchronization between male and the female. अभी प्लांट है वो हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है, सो पॉसिबिलिटी है कि उसके फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है. तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब flower will have both style, stigma, ovary and androecium.
अभी इस फ्लावर में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसी फ्लावर के एंथर्स के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के साथ फ्यूजन करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे एंड वी हैव टू समहाउ स्टॉप दिस प्रोसेस। हमें ये प्रोसेस स्टॉप करनी है। तो ये प्रोसेस प्लांट्स कैसे स्टॉप करते हैं? सो देर इज़ वन फिनोमेनॉन कॉल्ड एज डाइकोगैमी। अब इस डाइकोगैमी में क्या होता है दैट पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब पोलन जब रिलीज होता है तब उस फ्लावर की स्टिग्मा जो है वो रेडी नहीं है, शी इज़ नॉट रिसेप्टिव। एंड इफ स्टिग्मा इज रिसेप्टिव द पोलन ग्रेन्स आर नॉट येट रिलीज्ड। ओके, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा पर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं रहेगी, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी बट पोलन ग्रेन रिलीज नहीं होंगे। इसकी वजह से सेम फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ओके, एंड दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर कॉल्ड एज प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी, वेयर इफ पोलन इज रिलीज्ड much before the stigma becomes receptive, then such condition is called as protandry. Example is disc floret of sunflower. You can observe this disc floret over here. And if stigma becomes receptive much before that of pollen grain, then it is called as protogyny. Example is gloriosa. So it is very much clear कि अगर पोलन ग्रेन जल्दी रिलीज हो जाता है एंथर से और उस फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो उस कंडीशन को हम प्रोटैंड्री कहेंगे। अभी इस सिचुएशन में ये पोलन ग्रेन जाएंगे कहाँ? सो दे विल बी कैरीड अवे फ्रॉम दैट फ्लावर, क्योंकि वो उस फ्लावर को तो पॉलिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो दूसरे फ्लावर की तरफ जाएंगे। दे विल बी कैरीड, पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, hence they need abiotic or biotic agents to carry them, and we have observed this part in pollination. तो वो कैरी किए जाएंगे और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को वो फ्यूजन करेंगे, जिसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी उसके साथ वो अटैचमेंट करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन पूरी तरीके से अवॉइड होगा। और प्रोटोगाइनी में क्या होगा? प्रोटोगाइनी में उस फ्लावर के पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुए हैं, इमैच्योर है, पर उसके पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है। अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है, इसीलिए दैट स्टिग्मा विल अलाउ अदर पोलन ग्रेन्स टू जॉइन एंड टू डू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इसीलिए उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करेंगे, हालांकि दूसरे फ्लावर के जो है वो पॉलिनेट करेंगे। सो दैट इज हाउ द क्रॉस पॉलिनेशन इज एनकरेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइकोगैमी, which tells us the protandry and protogyny. To observe such conditions, we have set one examples over here. So look at the diagrammatic representation. This is protogyny and this one is protandry. अभी प्रोटोगाइनी में क्या हुआ है? लुक एट दिस स्टिग्मा, ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है, पर ये जो एंथर है यहाँ दिखाए हुए, ये एंथर अभी भी इमैच्योर है और इसमें से पोलन ग्रेन बाहर नहीं आए हैं। तो यहाँ क्या हुआ? स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई बट एंथर्स दे आर नॉट मैच्योर्ड येट, एंड हेंस वी कॉल दिस कंडीशन एज प्रोटोगाइनी। अभी इसमें क्या हुआ है? स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव येट, स्टिग्मा ओपन ही नहीं हुई है, रिसेप्टिव नहीं है, बट यू कैन ऑब्जर्व द एंथर, दे शेड ऑफ, और उसमें से ये रेड डॉट्स वाले पोलन ग्रेन्स बाहर निकल चुके हैं। नाउ दीज पोलन ग्रेन्स विल ट्राई टू जॉइन विथ सच फ्लावर्स वेयर स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, राइट, एंड दैट इज हाउ द प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। सो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तब उसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा। अभी यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये एंथर रेडी नहीं है, और यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टिग्मा रेडी नहीं है। बट इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कैसे? इसके जो पोलन ग्रेन है दैट मे गो टू द स्टिग्मा ऑफ दिस, ओके, राइट, एंड that is why there will be a possibility of cross pollination. So this is called as the dichogamy, which avoids self pollination and encourages the cross pollination.
सो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि मेल और फीमेल में सिंक्रोनी नहीं है, दोनों एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे, कोई तो भी एक पहले मैच्योर हो जा रहा है। अगर एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसे हम प्रोटेंड्री कहते हैं, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है तो उसे हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। दिस इज़ वन कंडीशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जिससे आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा। अब दूसरी कंडीशन को समझते हैं। ये सेकेंड कंडीशन है हर्कोगैमी और हेटेरोमॉर्फी। इसके अलग अलग नाम है। यू मे कॉल्ड इट एज हर्कोगैमी HERKO, यू मे कॉल्ड इट एज हर्कोगैमी HERCO, और हेटेरोमॉर्फी। हेटेरो रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एंड मॉर्फी मीन्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो दो अलग अलग प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको फ्लावर में दिखेंगे। यू विल ऑब्जर्व two different kinds of flowers. The first flower that will be observed is called as pin, that is approach hercogamy, and the second that will be called as thrum, that is reverse hercogamy. अभी अप्रोच हर्कोगैमी के गैमी में क्या होगा कि स्टिग्मा सबसे ऊपर रहेगी। मतलब अगर आप बाहर से फ्लावर देखोगे तो you will observe stigma first and then all other floral parts, because here the presentation of stigma above the level of anthers, and such arrangement of sex organs will cause floral visitors to first contact stigma before removing pollens from the anther. इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लोरल विजिटर्स होंगे मतलब इंसेक्ट्स, हनी बीज या पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वो सबसे पहले स्टिग्मा को कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्लावर में सबसे पहले दिखेगा क्या, स्टिग्मा, बिकॉज इट इज़ अबव ऑल। तो फ्लोरल विजिटर्स विल कांटेक्ट फर्स्ट स्टिग्मा, ओके, और बाद में फिर पोलन ग्रेन्स की तरफ जाएंगे, और बाद में फिर फ्लावर के अंदर जाएंगे और एंथर की तरफ जाएंगे, बट दे विल फर्स्ट विजिट टू स्टिग्मा। एंड इन रिवर्स हर्कोगैमी it is the displayed when stigma is recessed below the level of anther। मतलब ये उल्टा है, यहाँ पे स्टिग्मा अबाउ द एंथर, यहाँ एंथर अबाउ द स्टिग्मा, एंड दिस अरेंजमेंट कॉज फ्लोरल विजिटर्स टू फर्स्ट कॉन्टैक्ट द एंथर। यहाँ पे एंथर सबसे पहले कॉन्टैक्ट में हो गए। नाउ लेट्स सी दिस अप्रोच एंड रिवर्स हर्कोगैमी विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो। अभी ये जो कंडीशन है ये है अप्रोच हर्कोगैमी, और ये जो है ये रिवर्स हर्कोगैमी है। ओके, सो देयर आर टू कंडीशंस, अप्रोच एंड रिवर्स। अप्रोच का मतलब क्या है, पिन, और रिवर्स का मतलब क्या है, थ्रम। तो यहाँ अगर ये अप्रोच है तो ये कंडीशन क्या है, पिन, और ये अगर रिवर्स है तो ये कंडीशन क्या है, थ्रम। नाउ लुक एट द पिन एंड थ्रम। अप्रोच में देखो क्या है, ये है फ्लावर और ये है इसकी एंथर की लेवल, और ये है स्टिग्मा की लेवल। नाउ यू कैन बेयरली सी द डिफरेंस कि स्टिग्मा फ्लावर में सबसे टॉप में है ना, ये स्टिग्मा सबसे टॉप में है। ऑब्जर्व द रिवर्स हर्कोगैमी, उसमें उल्टा है, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ स्टिग्मा एंड दिस विल बी द लेवल ऑफ एंथर, मतलब एंथर सबसे टॉप में है। और यहाँ जो ये थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इट इज़ हर्कोगैमी इज एब्सेंट, मतलब बोथ आर एट द सेम लेवल। तो अभी एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ आ गया और उसने इस फ्लावर को सिलेक्ट किया, तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट सबसे पहले, वो इंसेक्ट सबसे पहले इस फ्लावर में स्टिग्मा में टच करेगा, यहाँ बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है। अभी वो अगर यहाँ बैठ गया पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर की तरफ से यहाँ आया हुआ है, इसीलिए वो पोलन ग्रेन्स लेके आया हुआ है। तो वो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन यहाँ डस्ट करेगा और इधर पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर बाद में वो यहाँ से मे बी द इंसेक्ट विल एंटर बिलो एंड गो टू द एंथर्स और विल कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, और फिर यहाँ से फिर से उठ के दूसरी जगह पे किधर तो भी जाएगा। अभी वो जहाँ भी जाएगा देयर इट विल डू अगेन अ पॉलिनेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ अप्रोच हर्कोगैमी द फ्लोरल विजिटर्स फर्स्ट विजिट टू द स्टिग्मा
and thus does the pollination of that flower. And in case of reverse sarcogamy, the floral visitors first visit to the anther and then to the other parts of the flower, whereas these anthers will remain paste to the insect and that will be carried away for the pollination of other flowers. तो ये तो नीचे का जो डायग्राम था दैट वाज एन कार्टून डायग्राम, एनिमेटेड डायग्राम, बट दिस इज अ ट्रू डायग्राम ऑफ अ फ्लावर वेयर यू विल ऑब्जर्व द पिन एंड द थ्रम. नाउ लुक एट द अप्रोच हर्कोगैमी. यहाँ ये पोजिशन एंथर की है. लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन. यू विल ऑब्जर्व हियर, ये जो पोजिशन है ये एंथर की है और ये जो पोजिशन है ये स्टिग्मा की है. सो यू कैन लुक हियर, द स्टिग्मा इज अबव ऑल पिन and here stigma is below and anther is above. So anther is above all, that is thrum. So this one is thrum, this one is pin. So ये हमें क्लियर होता है. तो इस तरीके से फ्लोरल विजिटर्स अगर आते हैं तो वो यहाँ स्टिग्मा पे को पहले ज्वाइन करेंगे और यहाँ आते हैं तो यहाँ एंथर पे पहले ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इधर एंथर ऊपर है, ओके, और इधर स्टिग्मा ऊपर है, एंड दैट इज हाउ इट विल टेक्स प्लेस. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये की जाती है. अभी ये हो गई अप्रोच और रिवर्स सर्कोगैमी. मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर दोज आर एट डिफरेंट लेवल्स. इसके पहले हमने डाइकोगैमी देखा वेयर द रिसेप्टिविटी ऑफ बोथ ऑफ देम आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. नाउ हियर द रिसेप्टिविटी इज सिंक्रोनाइज्ड बट द पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट. सो दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड and cross pollination is encouraged. So this is how it is takes place. अभी मानो ये अप्रोच हर्कोगैमी और रिवर्स हर्कोगैमी दोनों के दोनों एक ही प्लांट में अगर है तो ऐसे प्लांट्स को हम डाइस्टाइलस प्लांट कहते हैं. एंड हमें वही अभी समझना है. दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइलस प्लांट और हेटेरोस्टाइली. Now, if a single plant is there and it contains 2 to 3 morphological types of flowers, then such flowers are termed as morphs and they exist in the population. So this is one morph, this will be another morph, there will be third more morph, okay. So if a plant contains 2 morph, then that plant is called as a distylous plant, means there will be 2 flower morphs. One is S morph and other one is L morph. Okay. अभी S morph is thrum and L morph is pin. That can be easily seen. One is pin where the stamens are short and the pistils are long. Okay, like this. Stamens are short and pistils are long. And other one is thrum, whereas the stamens are long and pistil is short. Okay, and one flower, one organism, one plant if contains these both kinds of morph, मतलब उसको दोनों प्रकार की फ्लावर है. S फ्लावर भी है और L फ्लावर भी है. S मॉर्फ भी है और L मॉर्फ भी, मतलब पिन भी है और थ्रम भी है. तो उस प्लांट को हम डाइस्टाइलस प्लांट कहते हैं. एग्जाम्पल इज प्राइम रोज एंड बकवीट, मतलब वीट वाला प्लांट. तो इस तरीके से डाइस्टाइलस डिफाइन होती है. तो डाइस्टाइलस प्लांट में हमें दोनों प्रकार मिलेंगे. अप्रोच हर्कोगैमी भी मिलेगी और रिवर्स भी मिलेगी. मतलब इसमें आपको पिन भी मिलेगा और थ्रम भी मिलेगा. अभी ट्राइस्टाइलस में वन मोर इंटरमीडिएट स्टेज दैट डेवलप्स विच इज कॉल्ड एज एम मॉर्फ. अभी यहाँ देखो एस तो है, दिस वन इज एस, एम भी है और एल भी है. तो M is in between S and L. S means short style, L means long style, M represents mid style. Now observe here tristylus plant where there are 3 flower morphs are present. Each morph has 2 types of stamen. हर morph में 2 प्रकार की stamen होंगी. देखो ये एक stamen का प्रकार हो गया, ये दूसरा हो गया. इधर भी ये एक stamen का प्रकार हो गया, ये दूसरा हो गया. यहाँ भी एक हो गया, यहाँ एक दूसरा हो गया. मतलब क्या हो रहा है देखो, वन मॉर्फ वेयर द पिस्टिल इज शॉर्ट and the stamens are long and intermediate. Now look at here,
दैट पिस्टिल इज शॉर्ट। अभी आप पिस्टिल को ऑब्जर्व करो, पिस्टिल इज शॉर्ट, ओके। एंड स्टैमेन्स आर लॉन्ग एंड इंटरमीडिएट। स्टैमेन लॉन्ग भी है, ये वाले लॉन्ग हो गए और ये वाले इंटरमीडिएट हो गए। तो ये हो गई पहली कंडीशन। इन द सेकेंड मॉर्फ द पिस्टिल इज इंटरमीडिएट एंड द स्टैमेन्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग। नाउ लुक एट द पिस्टिल, इट इज इंटरमीडिएट and stamens are long or stamens are short. And in the third morph the pistil is long and the stamens are short and intermediate. The pistil is long, stamens are short and stamens are intermediate. And this is how these conditions are observed. तो इसमें से अगर आपको पिन और थ्रम चूज करना है तो आप क्लियरली चूज कर सकते हो। जिसमें पिस्टिल लॉन्ग है ये वाला, ये हो गया आपका पिन, और जिसमें एंथर्स लॉन्ग है ये वाला, ये हो गया आपका थ्रम, और ये जो है ये बीच वाला, ये हो गया इंटरमीडिएट। बट इनको हम पिन या थ्रम कहने के अलावा एस मॉर्फ, एम मॉर्फ और एल मॉर्फ कहते हैं इन ट्राइस्टाइलस सिचुएशन, और डाइस्टाइलस में हम इनको एस और एल ही कहते हैं। बट इफ आई टोल्ड यू टू कॉल्ड देम on the basis of hercogamy, then you have to say approach hercogamy and reverse hercogamy. So did these points are cleared? Of course they must be clear to you because this is very simple to understand. Just what you need to understand the diagrams and the position of the anthers and the style, that is pistil. तो इस तरीके से हमने देखा कि पोजीशन ऑफ एंथर और पोजीशन ऑफ स्टिग्मा इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होता है, और इन डिफरेंस की वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। सो दिस इज वन सिचुएशन। अब ये हो गया वन मोर काइंड ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी और आउटब्रीडिंग डिवाइस है विच इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टरिलिटी, मतलब खुद को स्टराइल करना। नाउ दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में दोनों की रिसेप्टिविटी परफेक्ट है, अलग अलग नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब एंथर भी पोलन रिलीज कर रहे हैं और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है। दोनों की पोजीशन में भी चेंज नहीं है, दोनों एक ही पोजीशन में, मतलब हर्कोगैमी एब्सेंट है। ये सब कुछ होने के बावजूद सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पोलन ग्रेन जो है वो खुद के पिस्टिल को, खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होंगे, and that is due to the proteins that they developed. It means this is a genetic mechanism which prevents self pollen grain from fertilizing the self ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. मतलब वो पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे बैठेगा, एक तो पोलन ट्यूब रिलीज नहीं कर पाएगा, पोलन ट्यूब रिलीज कर ली तो जर्मिनेट मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। either it will not germinate or it will not fertilize, and this is called as self incompatibility। खुद के साथ incompatible होना, मतलब खुद का पोलन ग्रेन खुद के पिस्टिल को फ्यूज नहीं कर सकता पर दूसरा कर सकता है, and that encourages the cross pollination which is a genetic mechanism। सब कुछ ठीक होने के बाद भी there is one more point called as prepotency। इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी होगा, वो पोलन ट्यूब भी रिलीज करेगा, बट इट विल जर्मिनेट वेरी स्लो एंड अलाउ अदर पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा, एंड दैट मेक्स द अदर पोलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज इट। मतलब पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट फास्ट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर। मतलब खुद के पोलन ग्रेन्स स्लो रिलीज होंगे और बाकी पोलन ग्रेन्स जो है वो फास्ट रिलीज होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रीपोटेंसी। कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एप्पल प्लांट। एप्पल प्लांट में हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार की
आउटब्रीडिंग डिवाइस ही है जिनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो अवॉइड हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एनकरेज हो रहा है. There is even one more which is called as unisexual flower, that is unisexuality, presence of unisexual flower. और इसमें आपको दिखेगा कि these unisexual flowers they are particularly staminate और pistillate one. इनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर टिपिकल, जिसमें आपको एंथर भी मिलेगा और स्टाइल स्टिग्मा ओवरी भी मिलेगी. बट ये स्टैमिनेट है. नाउ देयर इज नो गाइनोशियम इन इट एंड हियर देयर इज नो एंड्रोशियम इन इट. तो इसलिए ये हो गया आपका पिस्टिलेट फ्लावर और ये हो गया आपका स्टैमिनेट फ्लावर. सो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट such as castor and maize, then such plants are monoecious in nature and it prevents autogamy but will not prevent geitonogamy. तो मानो प्लांट है और प्लांट में दो प्रकार की फ्लावर है, एक पिस्टिलेट और दूसरा फ्लावर है स्टैमिनेट. तो स्टैमिनेट फ्लावर एक ये वाला फ्लावर है और एक ये वाला फ्लावर है. तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब ऑटोगैमी नहीं होगी, बट गाइटोनोगैमी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, जीनोगैमी भी हो सकती है. तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोशियस प्लांट कहते हैं विच हैव बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर ऑल्सो एंड फीमेल फ्लावर ऑल्सो. एग्जाम्पल इज कैस्टर एंड मेज. बट इन सेवरल स्पीशीज लाइक पपाया आपको मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग मिलेगा और फीमेल फ्लावर वाला प्लांट ही अलग मिलेगा. सो मेल प्लांट विल नेवर हैव fruit but female plant will have the fruit because female flower contain the pistillate flower and pistillate flower gives you a fruit, whereas male plant contains staminate flower and it will never give you the fruit. So that is why both male and female flowers and plants are different and such condition is called as a diocy, and this diocy will exclusively do xenogamy and completely prevent ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी. मतलब आपको सिर्फ जीनोगैमी परफॉर्म करनी है और डायोसी अगर है तो येस इट इज़ पॉसिबल, बट इट विल नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी. रीजन द प्लांट इज टोटली डिफरेंट. one plant is completely male whereas other plant which is completely female, and that is how it is changed. So if you observe the differences in such conditions, then we will have the possibility of different plants on different basis, such as, now look at the positions of the plants over here. All of the different conditions, this is an extra point for the NEET that you have to remember. Look at the first condition, this is a diocy. Diocy, it means like papaya. As I told you the example of papaya, papaya में जैसा होता है वैसा. देखो ये है मेल प्लांट, ये है फीमेल प्लांट. तो इनमें जीनोगैमी ही होगी, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी नहीं होगी, क्योंकि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है. ओके, you can understand the flowers by looking towards the diagram. That's why I will not discuss much more these points. Now look at the second diagram, which is androdiocy. Androdiocy, it means one plant is bisexual and other plant is staminate plant. उसमें सिर्फ stamen है. ओके, तो ये मेल प्लांट हो गया, ये मेल प्लस फीमेल मतलब डायोसी हो गई. देन नेक्स्ट इज गाइनोडायोसी. अगेन आपको एक मेल प्लस फीमेल वाला प्लांट मिलेगा, दैट इज बाइसेक्सुअल, एंड दूसरा सिर्फ फीमेल वाला मिलेगा. ओके, देन कोसेक्सुअलिटी, एक ही प्रकार का प्लांट मिलेगा और उसमें सारे फ्लावर्स जो है बाइसेक्सुअल रहेंगे. ओके, सो दैट इज अ मोनोशियस प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट, सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट. देन मोनोशियस प्लांट. मोनोशियस प्लांट में आपको दो प्रकार की फ्लावर मिलेंगी. एक फ्लावर जो होगा वो पिस्टिलेट होगा और दूसरा फ्लावर जो होगा वो स्टैमिनेट होगा. देन यू विल ऑल्सो गॉट एंड्रोमोनोशी, जिसमें आपको दो प्रकार की फ्लावर मिलेगी, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा स्टैमिनेट फ्लावर. गाइनोमोनोशी, जिसमें आपको दो प्रकार की फ्लावर मिलेगी, एक बाइसेक्सुअल और दूसरा मिलेगा पिस्टिलेट फ्लावर.
एंड ट्राइमोनोसी जिसमें आपको तीनों प्रकार की फ्लावर मिलेंगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी दिखेगा, मेल फ्लावर भी दिखेगा और फीमेल फ्लावर भी दिखेगा, एंड दैट मेक्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. And these all situations that are developed in the plants because to avoid the self pollination and to encourage the cross pollination. तो ये अलग अलग प्रकार की आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ जो है वो अवॉइड करना पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना पड़ता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से इन प्लांट्स में इवोल्यूशन होना है और एडेप्टेशन होना है. एंड दैट्स वाई दीज प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आर मोर अबेंडेंट इन द नेचर एंड दे आर मोर डाइवर्सिफाइड. और उनके पीछे यही सभी रीज़न है, दैट्स वाई दे आर मच मोर डाइवर्सिफाइड एज कंपेयर टू द अदर प्लांट्स ग्रुप. ओके, in the next part we have to observe the process of double fertilization, and we have to observe how the pollen grain, pollen tube germinates. Okay, how it releases the male gamete to the female gametophyte, and how the male gamete fuses with the egg to form the zygote, then the formation of seed, and then the formation of the fruit. So we have to observe all fertilization and post fertilization events in our next video. Okay, hope you got the points over here. These are quite difficult to understand. If you found any difficulty while observing these all diagrams as well as studying these slides as the lecture, then you can send me a message on the WhatsApp at any time. I will try to provide you the solutions of this. Okay, thank you very much for watching the video. Hope you guys enjoyed it. Okay, take care, bye bye.